Chapter 6, Dissolution of Partnership Firm. Steps in dissolution. First step in dissolution process is to prepare balance sheet of the firm as on the date of dissolution. पहला सब तो पहला बैलेंस शीट बनूगी जिस डेट ਨੂੰ dissolution ਹੋਈ ਹੈ, where both the date of dissolution and date of balance sheet are same. No fresh balance sheet is required to be made. मतलब अगर date of dissolution मतलब कि ਜਿਹੜੀ बैलेंस शीट आप मान लो ਆਪਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ और डिसोल्यूशन भी उसी डेट ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ तो बैलेंस शीट दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं हैगी. At the time of preparing balance sheet on the date of dissolution, effect of all transaction between date of previous balance sheet and date of dissolution to be taken into consideration. Next step of dissolution process is that non-cash assets which are not acceptable for distribution in the present form are all sold and converted into cash. ठीक है, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਨੋਨ ਕੈਸ਼ ਐਸੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਇਫ ਦਾ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਗੇਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੋਊਗੀ. ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੁੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ. ਬੋਥ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. Balance of realization account is transferred to partner capital account in their agreed profit sharing ratio before any cash is distributed to them. The last step in the dissolution is to distribute the available cash to creditors and partners. फिर at the end जे कोई cash बचता है तो वो ਪਹਿਲਾਂ creditors ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ partners ਨੂੰ distribute ਕਰ ਦਿੰਦੇ. Liability of partner after dissolution of firm. Partner shall continue to be liable. Dissolution ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਫॉर ਐਨੀ ਸੱਚ ਡਨ ਬਾਈ ਐਨੀ ਆਫ them which would have been an act of the firm if done before dissolution. ਪਰ ਉਹ done before dissolution ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ dissolution ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ till they give a public notice of the dissolution of the firm. ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. But a deceased or insolvent or dormant partner shall not be liable for act done after he has ceased to be partner. In this case, public notice of the dissolution need not be given. Modes of settlement of account है जी. next ये क्या है, section 48 डील करता है ना. section 48 कहता है section 48 of partnership act 1932 govern the settlement of account on dissolution of firm. कैसे, इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ लॉस किमें करना है या ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स किमें करना है. अगर तो लॉस है, लॉसेज शुड बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर. लॉसेज शुड बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आउट ऑफ कैपिटल, देन द एंड फाइनली बाय पार्टनर इन देयर शेयरिंग रेशो. मतलब जे लॉस हो गया पहला उन्होंने बिजनेस के प्रॉफिट चो कवर करना है, अगर नहीं होंदा तो फिर उन्होंने कैपिटल चो, अगर फिर भी नहीं होंदा तो पार्टनर्स उस लॉस नू अपनी रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स क्या है, पेमेंट ऑफ द फर्म डेट टू द थर्ड पार्टीज, पेमेंट ऑफ द पार्टनर्स एडवांसेस, पेमेंट टू ईच पार्टनर कैपिटल. एनी अमाउंट लेफ्ट आउट आफ्टर दीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. मतलब पहला डेट्स ऑफ थर्ड पार्टी पे करे जाएंगे, फिर पार्टनर तो अगर कोई लोन लिया होया वो पे करे जाऊगा, दैन पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट की जाऊगी. अगर कोई होर पेमेंट अमाउंट बचती है तो वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फर्म्स डेट वर्सेस पार्टनर्स पर्सनल डेट्स. व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड देयर मे बी फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर्स. इन सच ए सिचुएशन फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड. Firm's assets shall be applied in the first instance in the payment of debt of the firm. If there is any surplus, then each partner shall share of such surplus will be applied in the payment of his private debt or the amount will be paid to him. मतलब पहला फर्म दी एसेट्स नाल फर्म दी लाइबिलिटीज़ दी पेमेंट होगी. अगर कोई पेमेंट बच जाती है, कोई कैश बचता है तो फर्म दे पार्टनर दे प्राइवेट डेट्स वास्ते अप्लाई किया जाऊगा. लेकिन अगर इंडिविजुअल एसेट है, इंडिविजुअल एसेट ऑफ ईच पार्टनर मस्ट बी अप्लाइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन द पेमेंट ऑफ हिज प्राइवेट डेट्स. ठीक है, इंडिविजुअल एसेट्स के विचों अगर कोई पेमेंट करनी है तो सब तो पहला पार्टनर की पर्सनल पेमेंट होगी
आफ्टर सच पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट रिमेन्स दैट विल बी यूज इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। सिंपल है, फर्म दी एसेट्स पहला फर्म के डेट्स क्लीयर करूँगी, फिर पार्टनर के प्राइवेट डेट क्लीयर करूँगी। जी इंडिविजुअल एसेट्स हैं पहला पार्टनर की प्राइवेट डेट्स क्लीयर करूँगी, उस तो बाद जो बचूगा वो फर्म के डेट्स को क्लीयर करने वास्ते यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है राजे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन क्या? व्हेन ए फर्म इज डिसॉल्व्ड अकाउंट ऑफ द फर्म आर टू बी क्लोज्ड, एसेट्स आर टू बी रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज आर टू बी पेड। इफ एनी सरप्लस देयर आफ्टर रिमेन इट इज़ टू बी रिटर्न टू द पार्टनर्स। ठीक है, ये वास्ते आप की ट्रीटमेंट करते हैं, सब तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, दैन कैपिटल अकाउंट बनता है, दैन कैश और बैंक अकाउंट बनता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड दे आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट एंड व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड दे आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। ठीक है, एसेट रियलाइज होंगी है मतलब कि एसेट सेल होंगी है तो इस अकाउंट क्रेडिट होनी है, लाइबिलिटीज पे होनी है तो इस अकाउंट डेबिट होनी है। एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन आर डेबिटेड। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट ईदर प्रॉफिट और लॉस विच इज टेकन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। It is to be noted that realization account is the revenue account, an item appearing on credit side and income item, and item appearing on the debit side are loss item। मतलब जो क्रेडिट साइड पर होने जो इनकम्स होनी है, जो डेबिट साइड पर होने क्या होने लॉसेस। केड़ा अकाउंट है? रेवेन्यू अकाउंट है। एंड द बैलेंस इज ईदर प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। फॉर्मेट देख लिए रियलाइजेशन अकाउंट का। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट ये जो सीरियल नंबर डाले हुए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो डेबिट साइड पे सब तो पहला एसेट्स ट्रांसफर हो जानी है। कुछ एग्जांपल्स हैं, टू बिल्स रिसीवेबल, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू सन्ड्री डेटर्स, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, टू मोटर व्हीकल्स। एसेट्स ट्रांसफर हो गया। इधर लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती हैं बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय बैंक लोन, by provision for bad debts, by joint life policy reserve, by depreciation fund reserve, by investment fluctuation fund। देन आप आगे क्या सेकंड स्टेप क्या है? एसेट्स को रियलाइज करते हैं मतलब सेल करते हैं। तो बाय कैश और बैंक एसेट्स क्या हो गया? रियलाइज हो गया। लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करते हैं टू कैश और बैंक, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ बिल्स पेबल, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। ठीक है, समटाइम्स पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेंदा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। समटाइम्स जो पार्टनर है वो किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर देंदा है। ठीक है, तो वो भी अपना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करने लाइबिलिटी अज्यूम्ड बाय पार्टनर। ठीक है, टू कैश आंदा है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस की पेमेंट वास्ते भी। ओके जी, ये सारिया एंट्रीज करने तो बाद अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो जाती है तो लॉस है वो भी कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।